So starting with the first one, ठीक है. Remember, एक हम करेंगे ना, you'll get the idea how to solve this question. के starting with the first question, उसने कहा remember it's like solving a puzzle. This one, I said this one is a saturated alcohol. ठीक है. तो बल्कि एक सेकंड मुझे देना. जी सर. अच्छा चलो ठीक है, यहाँ से first thing, it's a saturated alcohol. ठीक है, ये एक information है. Mass, remember mass spectrum एक अलग चीज है, NMR spectroscopy is a totally different thing. तो लेकिन both of them are used together. तो उसने कहा कि the M peak is 74. So what is the M peak? That is basically the MR. ठीक है. So we know that the MR is 74. That the heaviest ion. क्या होता था mass spectroscopy में, that a molecule would be deflected in the magnetic field. The heaviest one was known as the M peaks. उसमें फिर chlorine की वजह से there was variation, M+2, M+4, etc. But M was the one with the lightest isotopes. So, and he's given us the M+1 peak ratio as well. Using this, you can figure out the number of carbon atoms. ठीक है, and most of the time the question would start this way. तो आपको क्या पता लगता था? M+2 से you would get the number of chlorines. The number of carbon atoms you would get from the वो end पे था ये वाला formula, that was 100/1.1 into M+1 divided by M. के carbon 13 होता था, जिसकी वजह से the mass of the molecular ion would vary by 1. So number of carbon atoms would be calculated this way. It's going to be 100/1.1 into 0.9 divided by 20.4. ये कोई मुझे जल्दी से इस इक्वेशन के अंदर हम परसेंटेज और रेशियोज कुछ भी डाल सकते हैं. हाँ, वो मैंने एक्सप्लेन किया था कि I told you कि अगर तो वो 99/1 था ना, that was 1 carbon. लेकिन I told you कि रेशियो जो है ना, वो usually 99/1 नहीं दिया होगा, वो किसी भी फॉर्म में दिया होगा. ठीक है, तो it's the ratio, जैसे 1.5/48.5 is the same ratio. ठीक है, तो उसके अंदर आप रेशियो ऐड करते हो, वो नंबर्स वेरी करते रहेंगे, but it would I mean this thing would still mean the same thing as 1.5/48.5. तो क्या है इसका? What is the number of carbon atoms we are getting? 4. चलो ठीक है, 4 carbon atoms. ठीक है, फिर उससे क्या what is the molecular formula of T? तो it's a 4 carbon atom saturated alcohol, जिसकी MR क्या है? That's 74. तो 4 carbon atom saturated alcohol. तो यहाँ पे ना 4 carbon atom saturated alcohol का मतलब है it's all single bonds and you'll have hydrogen atoms. और ये बस देखना है कि is this coming out to be 74 or not, which it would. 12 into 4, that's 48 plus 16 is 64. तो 74 बन रहा है. ठीक है, so this is coming out to be 74. But now the question is, अब यहाँ पे ना isomers will help you a lot. Before moving to NMR spectrum, make sure you take care of isomers because this is just one version of the molecule. ठीक है, there are other versions of the molecule as well. We're not sure that the OH is on the carbon at the end. It could be that the OH is on the second carbon atom. That could be that. Could be किसी का question है कोई? अच्छा, so you could have many saturated alcohols that will have an MR of 74 and it will have 4 carbon atoms. The carbon chain could be branched. So in that case, let's say the OH is at the end. इसके साथ there are 3 H's. सर उसने आइसोमर्स बनाने को कहा तो नहीं है. नहीं है ना, लेकिन हमने तुक्का लगाना है ना, हमें पता लगा it's a 4 carbon atom alcohol saturated, right? तो कौन सा वाला है? ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली NMR पे जंप करना ना, that's going to make things very difficult. कि अच्छा, एक ये हो सकता है, मैं जल्दी से बता दूं कि the OH could be on the middle carbon atom and you could have 3 H's. तो ये 4 isomers हैं. In the molecule is any one of them. It could be the first one or the second one or the third one, right? तो अब isomers draw करने का फायदा मैं बताता हूँ क्या होगा. कि these are the 4 options that you have. The NMR spectrum belongs to one of them.
तो NMR क्या बताता था? ठीक है, just a quick recap. What did you study in NMR? के you studied, ये तो fragmentation है. अच्छा, you studied this thing. कि अगर मैं, अच्छा अब NMR का question है, it would be very easy once you have isomers in front of you. अच्छा, you studied this thing. If you had a molecule, the hydrogen protons would resonate at different frequencies. ठीक है, तो same type of hydrogen protons or hydrogen nuclei would resonate at the same frequency. So if they were bonded in the same way, so these three hydrogens were bonded in exactly the same way, so they would all resonate at frequency F1. These two would resonate, they bonded in exactly the same way, so they would resonate at frequency F2. And this was bonded in a different way compared to the other one, so it would resonate at frequency, let's call that F0. So you would get three absorption frequencies. And the relative heights would be, it's going to be 3:2:1, which means that ye zyada absorb hoga because there's more hydrogen protons that are absorbing this frequency, fewer hydrogen protons absorbing this particular frequency, and even lesser hydrogen protons absorbing this particular frequency. So it would be 3:2:1. Ye clear hai ye pehli baat? NMR spectrum number of environments bata deta tha. ठीक है, is that clear? Yes or no? अच्छा, second जो था वो splitting pattern था. The splitting pattern was कि if the neighborhood had 0 hydrogens, then it would be a singlet. ठीक है, वो interference का होता था कि the neighboring hydrogen protons would cause interference, so this would not resonate at a single frequency. The frequency would split up into 4 smaller peaks. Not 4 smaller peaks. वो rule ये था कि the neighboring carbon atom has 0 hydrogens, it's going to be a singlet. If it's got 1 hydrogen, it's going to be a doublet. 2 hydrogens, it's going to be a triplet. So I'm going to take a look at this again. So according to the splitting rule, F1 के neighborhood में there are 2 hydrogens, so it's going to be a triplet. F1 is going to be, F1 would actually be 3 frequencies. ठीक है, this one over here. So this one over here is a triplet because the neighboring hydrogens would cause interference. So this one, इसके neighborhood में कितने hydrogens are? There are 3 of them, so these hydrogens would be a quadruplet. ठीक है, these two would be a quadruplet. This hydrogen has no hydrogens in its neighborhood, and OH वाला जो होता है हमेशा it's always a singlet. So F2 is actually going to be 4 frequencies close to each other, stacked close to each other. And F0 is just going to be a single frequency. तो मैं वो splitting का थोड़ा सा फिर से बता दूं. Detail important नहीं है. They're not going to ask you कि भी splitting होती क्यों है. They're not going to talk about the details. You just know that the hydrogen protons, when they resonate, the frequencies would fluctuate. So but the logic behind that was that these 3 hydrogen protons, when they're resonating, the neighboring hydrogen protons sometimes align with the external magnetic field. So these protons will experience a slightly greater magnetic field. Sometimes the neighboring hydrogen protons would be opposing the external magnetic field. So these hydrogen protons would experience a slightly lesser magnetic field. And sometimes they would be in opposite alignment. So the net effect would get cancelled out. So again, the frequency at which these hydrogen protons resonate depends on the amount of magnetic field that they experience, which would vary slightly because of the neighboring hydrogen protons. But the rule is, okay, that's the splitting pattern. This is something that you should know of. ये clear? और उसमें splitting में याद रखना कि the OH does not split. The NH2 protons, they don't split, or they don't cause any splitting because they're always singlets, because बीच में ना lone pairs आ जाते हैं and they shield the protons from the rest of the molecule. ठीक है, ये clear है? जी सर. अच्छा, अब आ जाओ. तो अब इसमें हम बारी-बारी देख लेते हैं. मुझे बता कि कितनी environments है इसमें. How many resonant frequencies for the first one? Like how many different protons do you have? Four. अच्छा, पहले तो ये CH हैं. They have a different frequency F1. अच्छा, then these 5 हैं. ये frequency F2. Then this one. अच्छा, this one would be F3. हाँ करें. Mic's off कर. This one would be F4. वो space bar use कर लो. Mic off करके. अच्छा, this would be F5. अच्छा, remember all these CH2s are different. Because this is a CH2 which is next to a CH3, so it's bonded slightly different compared to all the other ones. This CH2 over here
is next to NOH, so its environment is slightly different compared to the other ones. The middle one is different from the other two because on one side it's got a CH2, on the other side it's got a CH2 as well. So 5 peaks होंगी इसकी, 5 यहाँ पे कितनी है NMR में? That's 4, right? So the first one is wrong. ठीक है, फिर इस पे आ जाओ. How many different hydrogen environments do you have? इसमें भी 5 है. ठीक है, ये CH3, this would resonate at frequency F1. अच्छा, this CH3 is different because it's right next to NOH, so its environment is different, so it would resonate at a slightly different frequency. There, these two hydrogens are in exactly the same environment but different compared to the other ones. Let's call that F3. This hydrogen would resonate at 4, and 5th frequency would be absorbed by whatever that frequency is. ठीक है, this can be 5 होगी, so again it's incorrect. अच्छा, what about this one? कितनी, how many environments do you have? इसकी 4 है इसकी. क्योंकि ये, अच्छा, both these CH3s are exactly the same. Okay, this is also bonded to the same carbon atom, that is also bonded to the same carbon atom, so their chemical bonding environment around them is exactly the same. So वो let's say F1 पे resonate करता है, this resonates at F2. अच्छा, ये दोनों जो है ना, and this resonates at F4. ठीक है, is this clear? Yes, sir. तो यही होगा. आखिरी चेक कर लेते हैं. How many environments do you have for this one? 2. हाँ, 2 है, क्योंकि ये सारे CH3s exactly same है. They have exactly the same shielding, same chemical bonding around them. It's a CH3 bonded to COH. This is also bonded to COH. This is bonded to the same thing. So they're all exactly the same. So they will all resonate at exactly the same frequency. और ये वाला जो है ना, तो clear है. तो isomers का पता लगा कि because it's a lot harder to actually read this. मतलब इस direction में जाना ना बहुत मुश्किल है कि आप इसको देखोगे और उसका पता लग जाएगा. वो अगर पहले से कोई कैंडिडेट होगा ना, उसको मैच करना it's a lot easier. So which is why isomers are going to be very helpful. ठीक है, बाकी डिटेल भी चेक. तो रिमेंबर, बल्कि it's impossible, it's next to impossible कि आप ना खाली इसको बस देखो और इधर से ना मॉलिक्यूल बिल्ड करने की कोशिश करो. That would be kind of difficult. Make sure you have a bunch of candidates, and using those candidates you can sort of match with the NMR spectrum. Splitting pattern भी देख लेते हैं कि मुझे बताओ कि what is going to be the splitting pattern. OH क्या होगा? अगर मैं OH 1 होगा. हाँ, सिंगलेट होगी. ठीक है, उसकी वो एक सेकंड में ये अच्छा, so OH से स्टार्ट कर लेते हैं. there's one singlet, right? तो यहाँ पे NMR स्पेक्ट्रम में देखो, you do have a singlet, तो ये वो OH का प्रोटॉन होगा, right? ठीक है, it's this one. यानी 2.5 पे this is the frequency. मतलब F4 is actually 2.5 chemical shift. अच्छा, F3 की जो पीक होगी वो क्या होगी? Is it going to be a doublet, triplet, singlet? What is it going to be? इसके नेबरहुड में, हाँ, क्योंकि this OH को काउंट नहीं करना. ठीक है, the neighboring carbon atom has 1 H, so if it has 1 H it's going to be a doublet. सही है. अच्छा, फिर this is also going to be a doublet क्योंकि इनके neighboring carbon atom में ना right next door there's only 1 H. रूल क्या था? n+1 रूल के neighboring carbon पे एक H होगा तो it's going to be a doublet. 2 होंगे तो it's going to be a triplet. ये क्या होगा? What would F2 be? Multiplet, क्योंकि the neighboring carbon atom, यहाँ पे भी 2 H है, इधर भी 3 H है, इधर भी it's got H's all around it, so it's going to be a multiplet. यानी इसका मतलब there's singlet, 2 doublets and 1 multiplet. वही है, there's 2 doublets. ये बड़ी वाली doublet कौन सी वाली है और एक छोटी वाली doublet है? Which frequency, which doublet would have more absorption? यहाँ पे there are 6 hydrogens, right? F1 होगी. F1 वाली. 1 होगी. ठीक है, यानी ये जो, अच्छा, ये जो 1 पे जो doublet है ना, ये वाली है chemical shift 1. Multiplet वो है, it's जो भी 1.7. ठीक है, multiplet वहां पे है. And एक doublet, there's one doublet which is this one.
So that's the 3.4 वाली, ठीक है. अच्छा, but anyways, वो splitting pattern देखने की भी जरूरत नहीं थी. You were able to actually guess the answer even before that. अगर और डिटेल में जाने, you can also match the chemical shift values जो data booklet में है. कि कहाँ पे है? Each NMR ये वाला है. हाँ. अच्छा, you can go on to match the chemical shift values. के alkane chain वाला जो hydrogen proton होगा ना, that would be 0.9 to 1.7. So you've got two of them. But this is part of the alkyl chain. So 0.9 to 1.7 उसने कहा था. This one is also part of the alkyl chain, so it's 0.9 to 1.7. So it's the multiplet is also in the same range. But 1.5 से आगे बीच में कहीं आ रहा है. CH2 next to O, doublet जो 3.4 है, CH2 next to O, ये वाला देख लो, वो उसी रेंज में आ रहा है. It's 3.22. It's exactly the same range. और फिर वो आखिरी अल्कोहल वाला है, वो 2.5 पाया हुआ है, उसकी रेंज क्या है? उसकी रेंज जो है वो नॉर्मल अल्कोहल, दिस वन, उसका जो प्रोटॉन होगा 0.5 to 6, so that's in the same range. 2.5 वो उसी रेंज में आ रहा है, ठीक है. लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं थी, वो मैं आंसर तो बहुत पहले पता लग गया था, ठीक है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो बस उससे क्या ड्रॉ करो और वो एनालिसिस कि कौन सा प्रोटॉन इज रिस्पांसिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन. फिर वो स्प्लिटिंग पैटर्न का पूछा है कि भाई वो मल्टीप्लेट क्यों है. तो उसका सिंपल आप बताओगे भाई नेबरिंग कार्बन हैज अ लॉट ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स. मतलब इसके साथ ही ना मैं इसकी मार्किंग स्कीम भी खोल लूं, जस्ट वन सेकंड, ताकि वो मिल जाए कि ये मार्किंग स्कीम देख लेना. आंसर तो हमने निकाल लिया कि हाउ इट्स रिटन, ठीक है. तो वो डबलेट का उससे पूछा था, you just have to tell them that there's one proton, वो सारे आइडेंटिफाई करना थे. What you could have done is you could have drawn the molecule and you could have just written on top of it कि this is this one, this is this one, वो जो हमने किया हुआ है, ठीक है. तो बाकी वही है. हाँ, फिर there's right at the end ये जो OH वाला है, I also explained, वो नोट्स के अंदर एक्सप्लेन किया था कि NMR स्पेक्ट्रम में ना ये जो D है, ठीक है, I told you कि in organic molecules जो आपका alcohol वाला जो H है ना, that ionizes and NH2H also ionizes. So there's a very bright chance of them getting replaced by deuterium, which is another isotope of hydrogen. It gets replaced by deuterium if you put it in heavy water. Because heavy water में there would be lots of D+1 ions. So जो OH है ना, that there's a very bright chance कि it will ionize and in the reverse it will get displaced by D+1 ions. Baaki hydrogen protons, they don't get displaced. Like if you have a hydrogen proton, hydrogen on a carbon chain, it usually doesn't break, it doesn't really ionize. ठीक है, alcohol ionize करता है, NH2 ionize करता है. So their protons in heavy water will get replaced by D. D has even numbered nucleons, so it doesn't have any dipoles, it doesn't resonate. उसके जो spins है ना, वो cancel out हुई हुई है. So when you put it in heavy water, the OH peak and the NH2 peak, they just disappear. Because they get displaced by the other isotope, which does not resonate. तो यहाँ पे वो भी कह रहे हैं कि describe how the NMR spectrum of T dissolved in D2O would differ. अगर वो D2O में होगा, तो बस वो OH वाली peak जो है ना, that is not going to be there. This one, the one at 2.5. ठीक है, ये भी clear है? Yes, sir. So next one, as I remember, X-ray is no longer in your course. ये वाला कर लेते हैं. You're given first thing. You're given that P is an alcohol. So that's given. It's an alcohol, and it turns into Q. So पहले first thing, Mn+1. You can figure out the number of carbon atoms. Okay. So 100 over 1.1 into 0.15. क्या आ रहा है? कितना बना, किसने कैलकुलेट किया? रबिया, हादिया, सियाल. Sir, 3 आ रहा है.
So you're getting three carbon atoms, right? So 3 carbon atom alcohol है, so दो choices हैं. It's either going to be a primary alcohol or ये बाकी H है. अच्छा, or the second option is so the second option is it could be a secondary alcohol. Okay, so you've got two options. The NMR spectrum of P and Q is given. This is P. So how many environments? That's 4 environment. Ignoring splitting, it's 4 environments. So you've got two options. Which one has 4 environments? इसमें कितनी है? 4 बोलो ना 4 But इसमें there's 1, 2, 3 and 4. अच्छा, उसमें 3 है क्योंकि जो end वाले CH3 है ना, they're exactly the same. You're different and this is different. So this one will have 3 peaks. That one will have 4 peaks. But then again, it's this one. It's this one. You can match the splitting pattern as well. This is going to be a triplet. The neighbor has 2 hydrogens. This one, that's going to be a multiplet. That's going to be a triplet. That's a singlet. So you've got 2 triplets, multiplet, and singlet. So 2 triplets, a multiplet, and a singlet. So pretty sure it's this one. So that is definitely a 3 carbon atom alcohol. It's a primary alcohol. Basic guess karo, what would Q be? aldehyde acid अच्छा, तो we know that primary alcohol, अगर वैसे guess करें, might be a carboxylic acid. Primary alcohol turns into a, like this will turn into an aldehyde and it will then turn into a carboxylic acid. अच्छा, NMR spectrum में Q is given. NMR spectrum में it's very easy to figure out carboxylic acids. यहाँ पे लिखा हुआ भी था कुछ tips end पे ना, कि carboxylic acids are very easy to identify using the data booklet. Otherwise, don't open the data booklet, but specifically for carboxylic acid, it's pretty easy to identify using a data booklet क्योंकि ये जो 12 के peaks आ रही है ना, that's कहाँ पे data booklet? ये जो extreme peaks आ रही है ना, that happens with the carboxylic acid over here. और इतना आगे जो चली जाती है ना 9 to 13, that's a carboxylic acid proton. It could be an amide or an aldehyde proton as well. ठीक है, but I think जो हमारी है ना वो fit हो रही है. If I go back, ours is around let's say 11.8. तो 11.8 जो है वो इससे तो बाहर निकल गया aldehyde से. Amide तो था ही नहीं, there was no N to begin with, so that's gone. So the only option left is the carboxylic acid. So that's pretty easy. Okay, this one would be the carboxylic acid. ठीक है, तो remember this. Okay, aldehydes, and you can match the splitting pattern. Okay, this is obviously 3 environments. So there are 3 peaks. This one is going to be a triplet, and this one is going to be a quadruplet. इसके neighborhood में 2 hydrogens, that's a triplet. This one has 3 hydrogens, so that is going to be a quadruplet. ठीक है, clear है बात? बाकी देख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को क्या है वो. अच्छा, now again 11.8, ये शक्ल देख के पता लग रहा है it's a carboxylic acid. ठीक है, अच्छा, this one is a carboxylic acid. MM+1 दिया हुआ है, just to be, although it's exactly the same molecule, it's a different question, but you can figure out the number of carbon atoms. It's going to be 100 over 1.1 into 2.5 divided by 74. You guys solve for it, it's going to come out to be 3 carbon atoms. So it's going to be a 3 carbon atom. And you can only have 1 3 carbon atom. There's no other versions of this. ठीक है, MR नहीं दी हुई थी.
तो बस उसे आइडेंटिफाई कर दो, ठीक है। हाँ, फिर वो कह रहे ये क्लियर है, इज दिस पार्ट क्लियर? जी सर। तो सिंगलेट वाला या फिर OH3 होगा या फिर एल्डिहाइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, जो एक्सट्रीम वो एंड वाला ना, इधर तो 11 किधर 11.8 था ना, तो 11.8 तो खाली कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, क्योंकि एल्डिहाइड भी मतलब बाकी सारे 4 5 1 2 3 इसमें ना कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड्स एंड एल्डिहाइड्स वो काफी आगे हैं। लेकिन 11.8 is the I mean this is the only option, carboxylic acid, ठीक है। सही है। अच्छा, अब ये कि deduce the, अब क्या कह रहा है वो, अच्छा we did figure out the structural formula of G, तो क्या several structural isomers of G exist, draw the structural formula of an isomer of G with only 2 absorptions in its spectrum। तो वो कह रहे हैं इसका कोई isomer draw करो which has only 2 absorptions। तो एस्टर बना दो, मतलब आइसोमर इसका क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है क्या, that's most likely an ester, और तो ये बन गया, that's it, both of them are different environments, ठीक है। let's say F1 पे resonate कर this it, so that's about it, ठीक है। is this clear? जी सर। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, थोड़ा मुश्किल है। उससे क्या है, NMR spectroscopy is given the 3 peaks of highest mass in the mass spectrum of organic compound L correspond to 142, 143 and 144, यानी उसके isotopes की वजह से। So I'm just going to focus on 142, that's the let's call that the MR, the one that has that's the lightest version of the molecule। MM+1 का रेशियो दिया हुआ है, तो can anyone tell me what the number of carbon atoms are? Sir, 7. अच्छा, so we're getting 7। अच्छा, we are getting 7 carbon atoms, ठीक है। फिर MM+2 का भी रेशियो दिया हुआ है, and this ratio is approximately 3:1, ठीक है। what information did you get when you had वो NMR ये mass spectroscopy का उसका है कि उससे क्या पता लगता था कि ये जो ब्रोमीन्स का है, एक क्लोरीन्स का, कि if a molecule has 1 Cl, its MM+2 height would be 3:1 in 3:1, क्योंकि या तो क्लोरीन 35 होगा या फिर the mass of the molecule would be heavier by 2 because it would be 37, 35 के आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। So this indicates, what does the M+2 indicate? It indicates it's got 1 chlorine, ठीक है। ये भी क्लियर है? जी सर। अच्छा, अभी तक मुझे ये पता लगा है कि it's 142, इसमें 7 कार्बन एटम्स हैं and there's 1 Cl, फिर हाइट भी दी हुई है, रिलेटिव हाइट, that's the number of hydrogens, कि अगर उसकी रिलेटिव हाइट 1 है तो that's 1 hydrogen, अगर 2 है that's 2 hydrogen protons resonating at that frequency, 4 होंगे तो 4 hydrogen protons resonating at that particular frequency, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना होना कि इसकी हाइट छोटी क्यों है, इसलिए अगर वो थोड़ी सी फैल जाए ना तो उसका जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो बेसिकली आप मेजर कर रहे होते हो, क्योंकि वो फ्लक्चुएशंस की वजह से वो थोड़ी सी अगर फ्रीक्वेंसीज आगे पीछे हो जाए ना तो वो फिर उसकी जो ओवरऑल हाइट होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अच्छा, 4 hydrogens, 2 hydrogens and 1 hydrogen, that's the relative ratio of the heights। तो टोटल हाइड्रोजन्स कितने हैं? we've got 7 protons, ठीक है, by looking at the graph। अच्छा, पिछले वाले में हाइट नहीं दी हुई थी, पिछले वालों में जो पिछले क्वेश्चंस थे ना, you were not given the height or the relative height, so you were not able to figure out how many protons are there in this environment or in this one or in this one, but in this question they did give you or quote you the height of the protons। तो यहां तक आ गया, इसको जरा टोटल करो, और remember 142 is the one that's the lightest version, so can somebody add this all up, 12 into 7 plus Cl जो है ना वो लाइट वाला रखना है, 7 carbons, you've got 35 for Cl and 7 for hydrogen, what do you get?
Is it 142 or not? क्या किसी ने 126 आ रहा है सर. 126 आ रहा है? जी. अच्छा 126 आ रहा है, इसका मतलब है कि what's the difference between what is missing? What is the mass that is missing? 16? Yes, oxygen. तो इसका मतलब है इसमें OH. नहीं, OH तो 17 हो जाएगा. So probably going to be one oxygen. ठीक है, the most probable thing that's missing is मतलब 7 hydrogens है. हाँ, तो सर 7 वो जो सिंगलेट है वो OH नहीं हो सकता? हो सकता है. ठीक है, वो देख लेते हैं. अच्छा खैर एक ऑक्सीजन होगा. ठीक है. अच्छा दैट्स द फॉर्मूला. अब इसमें एक और जो टिप है ना वो ये कि वो भी कहीं मेंशन थी कि सेकंड. अच्छा एक और इंफ्रारेड है. एक और जो चीज यहाँ पे मेंशन थी ना वो थी कि कार्बन और हाइड्रोजन का जब रेशियो 1:1 होता है दैट मींस इट्स अ बेंजीन, बिकॉज नॉर्मली कार्बन एंड हाइड्रोजन रेशियो इज 1:2 और ग्रेटर. तो जब 1:1 आ रहा होता है ना, इधर कार्बन और हाइड्रोजन रेशियो इज 1:1, दैट इंडिकेट्स देयर इज डेफिनेटली अ बेंजीन. तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल में एक बेंजीन तो है. तो इनमें से व्हिच वन वुड बिलोंग टू बेंजीन? बेंजीन में हाउ मेनी हाइड्रोजन डू यू हैव? You have 6 of them, right? सर फिर से रिपीट करिएगा कि कौन सी उससे पता चलता है कि बेंजीन नहीं है? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या आ रहा है? 7 कार्बन हैं और हाइड्रोजन भी 7 आ रहे हैं ना. तो इतना लो रेशियो जो कार्बन और हाइड्रोजन में होता है ना, दैट इज यूजुअली इन अ बेंजीन. वरना हाइड्रोजन डबल होते हैं, डबल से भी ज्यादा होते हैं. एल्केन्स में CnH2n+2 होता है ना, एल्कीन्स में CnH2n होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी CnH2nO2 होता है. तो हाइड्रोजन आर यूजुअली डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. सेम रेशियो में सिर्फ और सिर्फ बेंजीन में होते हैं. ठीक है. अच्छा तो बेंजीन में कितने हाइड्रोजन प्रोटॉन्स होते हैं? You've got 6, right? Every carbon atom is making 3 bonds in benzene. 4th इलेक्ट्रॉन जो था वो डबल बॉन्ड डाल रहा था. ठीक है. अच्छा बट एनीवेज यहाँ पे this is the one that would belong to benzene, क्योंकि बेंजीन में you have a lot of hydrogen protons and they would approximately resonate at the same frequency. But यहाँ पे 4H दिया हुआ है. तो इसका मतलब है कि 4 जगहों पे तो H होगा बेंजीन वाला, बाकी 2 पे कुछ और होगा. सो फॉर्मूला वाज C7H7. एक Cl भी था और एक O भी था, राइट? दिस वाज द फॉर्मूला. तो पीछे क्या रह गया? देयर इज 1 कार्बन लेफ्ट. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ऐड दैट कार्बन. दैट्स द 7th कार्बन एटम. ठीक है. और उसके अलावा क्या रह जाता है? दैट्स 2 हाइड्रोजन्स एंड 2 हाइड्रोजन्स का मतलब है मस्ट बी अ CH2. सेम एनवायरनमेंट ना, 2 हाइड्रोजन्स. अब एक हाइड्रोजन रह गया. तो when I have 2 hydrogen, so that could possibly be NOH, and the Cl would be on the other side. That's one version. Or it could also be the other way around as well. There could be a different version as well. कि benzene तो हो गई होगा. ठीक है. It's definitely a benzene with 4 hydrogens. अब वो 2 hydrogens रह गए, वो CH2 तो हो गई होगा. But the OH could be in this other one. The OH could be over here, and the Cl could be over here. ठीक है. So there could be 2 versions of the molecules. तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा on the spectrum? नहीं, काफी फर्क पड़ेगा क्योंकि this is an alcohol OH and that is a phenol OH. अच्छा.
सर बेंजीन के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो सब सेम एनवायरनमेंट में होता है ना? ऑलमोस्ट सेम, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं, इसलिए वो थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है ना। ठीक है, ठीक है सर। तो आप कह लो कि ऑलमोस्ट सेम है। जैसा जैसे ये दो है, ये दो तो एग्जैक्टली सेम है ना, ये दो एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो आप कह सकते हो बेंजीन के जो प्रोटॉन्स है ना, दे ऑलमोस्ट रेजोनेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम फ्रीक्वेंसी, इसलिए वो थोड़ा सा बेंजीन का ना वो थोड़ा सा इस तरह का आएगा। ठीक है, अच्छा कमिंग बैक टू दिस, ये एक नॉर्मल अल्कोहल OH है। वो सिंगलेट का तो पता लग गया ना कि ये तो OH है ना, वी नो इट्स एन OH। जी सर। वो में पता लग गया दैट इज अ CH2। ठीक है, अब रह गया बाकी के अब उसके लिए डेटा बुकलेट चाहिए कि अल्कोहल OH या फिर बेंजीन OH। तो यहाँ पे देख लो कि अल्कोहल OH इज 0.5 to 6 और बेंजीन OH 4.5 to 7। बेंजीन वाला OH निकल गया है क्योंकि 4.5 to 7 है। रिमेंबर बेंजीन OH 4.5 to 7, तो बेंजीन OH को कहीं यहाँ पे होना चाहिए था, मतलब फिनोल इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, हमारा OH जो है वो अल्कोहल वाली रेंज में आ रहा है। अल्कोहल की जो रेंज थी ना वो थी पता नहीं 0.5 से 6 तक थी, तो ये वाला जो है ना दैट इज कमिंग इन द अल्कोहल OH रेंज, इसका मतलब है अल्कोहल वाला OH है, तो दैट इज द करेक्ट वन। ठीक है, क्लियर है? सही है सर। और बस उसने 7 मार्क क्वेश्चन है, यू हैड टू, मतलब स्टेप्स भी हैं पीछे। सो दैट इज, ये पिछला क्लियर है सारा? जी। अब अगला ये कि ये फ्रैगमेंटेशन का क्वेश्चन है, so just one difference in the fragmentation pattern of the mass। fragmentation क्या होती है? when you are doing mass spectroscopy तो ये आयनाइज हो जाता है, that's the molecular ion, or it might break down into smaller pieces। तो वो कौन सा पीस है जो, what's the one difference in the fragmentation pattern? What piece could be formed in one of them and not the other one? एक सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फॉर्म हो सकता है। नहीं लेकिन mass spectroscopy जो होती है ना उसमें तो स्ट्रक्चर का तो नहीं पता लगता ना, mass spectroscopy में क्या होता है वो तो मास का पता। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको ये नहीं बताती कि डबल बॉन्ड कहाँ पे या डबल बॉन्ड है या नहीं है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ओनली टेल यू द मास के इस मास का पार्टिकल डिटेक्ट हो रहा है, इस मास का पार्टिकल डिटेक्ट हो रहा है। वो बाद में तो आप फिर खुद तुक्के लगाते हो ना कि वो मास पे क्या होगा। ठीक है, तो रिमेंबर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ये नहीं बता सकती कि उसमें डबल बॉन्ड था या नहीं था। अगर हम फ्रैगमेंटेशन करें ना, इससे आगे था, हाँ तो मैंने कहा था कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको मास तो बता देती है कि 15 है, वो आगे आपको खुद ही तुक्का लगाना पड़ता है कि 15 क्या होगा, CH3+1 होगा क्या होगा, या 84 आ रहा है, वो फिर आप खुद ही गैस करोगे। हो सकता है एक कार्बन 2 Cl के साथ हो, या हो सकता है कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। सो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डज नॉट टेल यू कि डबल बॉन्ड है या नहीं है, वो ये सब नहीं बताएगा। तो मुझे तो कि कौन सी मास का पार्टिकल है जो इधर डिटेक्ट होगा एंड इट विल नॉट बी डिटेक्टेड इन द अदर वन। सर CH3 and CH2। CH3 बेसिकली 15 के ऊपर ना एक पार्टिकल डिटेक्ट होगा having a mass of 15। You will never detect a particle having a mass of 15 in this molecule, क्योंकि यहाँ पे CH3 का पीस बनेगा, इसको जितना मर्जी तोड़ दो, इसको इधर से तोड़ दो, ये तोड़ दो, जिस मर्जी डायरेक्शन से तोड़ोगे इट्स नेवर गोइंग टू बी 15। ठीक है, इज दैट क्लियर? जी सर। यानी 15 mass के ऊपर ना there's going to be a particle that would be detected। अब वो कह रहे हैं NMR स्पेक्ट्रा, अब ये मास स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन नहीं है, नाउ इज टॉकिंग अबाउट द NMR स्पेक्ट्रा। वो कह रहे हैं NMR स्पेक्ट्रा में डिफरेंस बताओ। तो अब वो एनवायरनमेंट कहा जाता है कि हाइड्रोजन के प्रोटॉन की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, हाउ मेनी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज वुड दिस हैव? 3। ठीक है, तो CH3 ये CH, तो इट्स गोइंग टू बी F1। अच्छा ये दूसरा वाला कितनी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी ये वाली? 1 बॉन्ड सेम है, एक ही होगी सर। एक ही है। ठीक है, तो एक तो डिफरेंस ये है कि 3 absorption peaks or peaks in the NMR spectra of this one, there's only 1 peak in this one।
फिर स्प्लिटिंग का भी होगा, इसमें स्प्लिटिंग कोई नहीं होगी क्योंकि दे ऑल रेजोनेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोई नेबरहुड है ही नहीं, मतलब इट्स दे ऑल रेजोनेटिंग टुगेदर। यहाँ पे splitting होगी, ठीक है, this one is probably going to be a doublet, this one is going to be a quadruplet, and this one is going to be a doublet as well. तो एक तो splitting भी होगी, तो दो differences, ठीक है, there's no splitting in this one. So moving on, ये कर लेते हैं कि ये जल्दी से number of carbon atoms बताओ क्या, how many number of carbon atoms do you have? (100 over 1.1) m plus 1 divided by m. सर आपने 0.22 के नीचे 84 लिखा है। Sir, 5.1. नहीं सॉरी, 5.1 हाँ सॉरी 84, अच्छा मैंने उसको लिख दिया। तो 4 तो कार्बन सर उसका फिर 3.9 होगा, हम उसको 3 लेंगे या 4 लेंगे? 4 4 उसको लेंगे। राउंड करना है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा 4 कार्बन एटम्स, ठीक है, सो जो भी है 4 कार्बन एटम वाली चीज है। अच्छा नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी पता लग गया, इट्स C8 हो गया ना, तो C4 H8, और उससे कहा हुआ है MR जो MP का ना दैट्स 88, तो 88 होना चाहिए। मुझे बताओ कि क्या मिसिंग है। व्हाट इज C4? दैट्स 12 into 4, दैट्स 48 plus 8 56 बनता है, तो क्या चीज बीच में ऐड होगी तो 88 होगा? 2 ऑक्सीजन नहीं, 32 मिसिंग है ना। यस अच्छा सो प्रॉब्ली गोइंग टू बी 2 ऑक्सीजन, ठीक है। सल्फर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि असल में डेटा बुकलेट में सल्फर का दिया ही नहीं है, तो NMR स्पेक्ट्रम में नेक्स्ट टू ऑक्सीजन है, नेक्स्ट टू सल्फर नहीं है, ठीक है। तो सल्फर वाज अ पॉसिबिलिटी बट इट्स डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी अ सल्फर इन दिस केस, ठीक है। 2 ऑक्सीजन, ठीक है। सो द फॉर्मूला इज C4H8 and O2, राइट। अब ये कि अब फिगर आउट करना है इसको ना कि व्हाट इज दिस। अच्छा फर्स्ट थिंग, दिस वन इज अ CH3, this one is also a CH3, मतलब वही होगा, it's 3 hydrogens in the same environment, that's probably a CH3, 2 hydrogens in the same environment, that's probably a CH2। तो इसका मतलब है 2 CH3s हैं, यानी एंड्स पे ना CH3 तो एंड पे ही आता है ना, तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल के एंड्स पे ना देयर इज CH3s। पर एस्टर हो सकता है, तो प्रॉब्ली एस्टर होगा। अच्छा लुक एट द स्प्लिटिंग पैटर्न, मुझे बताओ कि दिस इज अ ट्रिपलेट, तो इसका नेबरहुड क्या होगा इफ इट्स अ ट्रिपलेट? 2 होंगे हाइड्रोजन वाले, CH2 हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस वन, if it's a triplet, the neighbor has 2 hydrogens. That means the neighbor is CH2, right? तो वो मैं पता था CH2, और CH2 is a quadruplet. There are 4 उसके peaks. साथ CH3 है, CH3 से quadruplet हो गया। हाँ, so the neighbor has 3 H's because it's a quadruplet. तो वो दोनों साथ साथ ही है, मतलब ये इसके साथ है, वो इसके साथ है। अब आ जाते हैं कि, और वो CH3 सिंगलेट है, इसका मतलब है नेबर के पास ना कुछ नहीं है, मतलब there is a 4th carbon atom, remember that. लेकिन नेबर के एडजेसेंट नेबर पे there is it's a singlet, तो इसका मतलब है नेबर has no hydrogens. अच्छा the 4 carbon atoms, there's a carbon atom that is missing. पहले तो CH2 का देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। 4 के इर्द-गिर्द रेजोनेट कर रहा है, so CH2 resonating around 4, तो डेटा बुकलेट में ना CH2 resonating around 4 is CH2 which is next to oxygen, तो वो 3.22, मतलब बाकी कोई नहीं है, no one resonates around 4, it's CH2 which is next to oxygen, so this one is a CH2 which is next to oxygen, तो यहाँ पे मैं I'm going to put in oxygen over here. सही है, क्लियर है? सही है। और फिर ये CH3 देख लेते हैं जो सिंगलेट है, that is around 2. So when does CH3 resonates around 2? That's when you have a CH3 which is next to serial bond O, तो वो 2.223, ठीक है। ये तो बेंजीन, एरोमेटिक इज बेंजीन, वो तो वैसे आउट ऑफ द क्वेश्चन है। So everything else is out of the question, ठीक है। You don't have a triple bond क्योंकि C4H8O2 is not you can't get a triple bond in that. तो it's CH3 which is next to serial bond O. तो CH3 next to
और वो सिंगलेट भी था ना, दैट मींस कि नेबरिंग कार्बन हैज नो हाइड्रोजन्स। अब बस ये एस्टर है, ठीक है। इज दैट क्लियर? जी सर। सर इसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ का पोजीशन डिफरेंट भी हो सकती है ना, लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ पहले आए फिर ओ आए। नहीं हो सकती ना, क्योंकि CH2 जो है वो किसके साथ है? O के साथ है ना। डेटा बुकलेट कह रही है 4 के ऊपर ना, 4 के ऊपर CH2 इज नेक्स्ट टू O, 4 के ऊपर। तो मसला है कि CH2 को नेक्स्ट टू O ही रखना है, और C ओके तो मतलब ये पोजीशन एग्जैक्टली यही होगी। सही है, ठीक है सही है। चलो बस बाकी एंड से देख लेते हैं कि okay, explain how and why the NMR spectrum of propanol would be different from propanone. तो बस बता दो कि प्रोपेनल में कितनी एनवायरनमेंट्स हैं और उसका स्प्लिटिंग पैटर्न बता दो। कितनी एनवायरनमेंट्स है प्रोपेनल में? 3 ठीक है, और प्रोपेनोन में देयर इज ओनली वन, और देयर इज नो स्प्लिटिंग, ठीक है। अच्छा, हाउ वुड द मास स्पेक्ट्रम बी डिफरेंट? कि मतलब हाउ व्हाट, मतलब ये पहले कर लेते हैं। दिस इज 3 peaks in the NMR spectrum, this is 1 peak। अच्छा, यहाँ पे there would be splitting, or you're going to talk about the splitting, there's going to be a triplet, sorry, there's going to be a triplet, a quadruplet and a singlet। नहीं बल्कि singlet नहीं होंगे, this is also going to be a triplet। या simply mention कर दो कि it's going to split। this one is going to be no splitting। अच्छा, mass spectrum का बताओ, how would the mass spectrum be different? इथाइल की ब्रांच और CHO सर। अच्छा, रिमेंबर उसको नहीं पता कि इथाइल है। मास स्पेक्ट्रम में सिर्फ मास पता लगती है। सो दिस इज अ मास ऑफ, व्हाट इज द मास दैट यू आर गेटिंग फॉर दिस वन? दिस इज 29। 29 तो 29 के ऊपर 29 you'll detect a particle। Can you possibly have a particle having a mass of 29 in this case? I don't think so। नो क्योंकि CH3 अगर 7 वाला कार्बन मिलाओगे, that's 12 plus 15, that's 27। 27 के बाद अगला जो फ्रैगमेंट आएगा उसमें ऑक्सीजन मिलाना पड़ेगा बीच में, सो दैट वो फिर 27 से आगे निकल जाएगा। या फिर इस साइड पे जाओगे तो यू वुड हैव टू पुट इन अ कार्बन इनटू इट, so that would be a bigger fragment as well, so that will not be 29। so you'll detect 29 over here, you will not detect 29 over here। प्लस और क्या हो सकता है? अच्छा, 29 तो हो गया। वैसे देख लेते हैं कि आखिरी था। अच्छा, ये भी कहा उसने, ठीक है, और भी बहुत सारे। 1 is 29, ठीक है, will detect a fragment at 29। सर इसके 5 मार्क्स थे, हमें पांचों के पांचों बताना है। नहीं, उसने कहा है कि any 3 points, हाँ 3 बताना था। अच्छा, हमने तो एक के ऊपर ही खत्म कर दिया था। वो एक मार्क था, उसके अंदर उसने डिटेल भी दी है वैसे। वो उसने NMR स्पेक्ट्रम भी कोड किया हुआ है। सिंगल पीक, नो स्प्लिटिंग, ठीक है, दैट्स फाइन। 3 sets since there are 3 different protons, और बस ठीक है। अगला जो है, अच्छा उसने वो NMR डेटा बुकलेट से ना वैल्यूज भी कोड की हुई है, ठीक है, तो वो देख लेना। वो मैंने मार्क्स नहीं देखे थे, लेकिन बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं हो गए। 3 मार्क को इधर दे रहा है। तो यहाँ पे तो सिर्फ 4 मार्क लिखे हुए हैं आपकी उसमें पेपर में। हाँ, इधर पता नहीं 5 लिखे हुए हैं। चलो पता नहीं, बिल्कुल पुराना क्वेश्चन है। अच्छा, एनीवेज 29 वाला हो गया। 43 वाला भी है। CH3 CO का जो फ्रैगमेंट है ना, वो एक में बनेगा, दूसरे में नहीं बनेगा। मतलब you'll get a fragment of CH3 CO which is not possible in the other one। या फिर और कौन सा है? 29 वाला तो हो गया। CHO भी एक्चुअली 29 बनता है, ठीक है, वो भी फर्स्ट में बनेगा। और 57 वाला भी दिया हुआ है। तो charges on fragments not required। अच्छा, but remember this, whenever you quote a fragment, put a charge on it। Either although he's ignoring it, but make sure जब भी fragment लिखोगे ना, make sure you put a charge on it, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वो क्या C3H6O2 ये बन रहा है। So just 2 environments, so it must be
it must be an ester के यहाँ पे CH3s और यहाँ पे there is CH3s, ठीक है, that's it. अच्छा बीच में बस मैं वो ऐड कर दूं कि कार्बन 13 के एक दो क्वेश्चंस मैं वैसे गूगल कर लेता हूँ कि उसके बहुत आसान है वो। हमने कार्बन 13 is the same as NMR except उसमें you look at the carbon environment and there is no splitting. तो अच्छा एक दो क्वेश्चंस हम नोट्स ही खोल रहे हैं। ये वैसे खोल लेते हैं। नहीं सर इसमें तो कार्बन 13 था ही नहीं। जस्ट वन सेकेंड। हाँ ये कार्बन 13 का आ गया, ठीक है। Predict the number of peaks that are seen in the carbon 13 NMR spectrum, ठीक है, of R. This is R. So remember, it's the same question, except कि splitting वाला चक्कर नहीं है इसमें, बस same question, carbon environment, and the focus is not on the hydrogen, it's on the carbon atom. तो ये carbon that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक ये और एक ये। अब मुझे बताओ carbon की environments, which carbons are in the same environments? This carbon and this carbon, are they in the same environment? Same है ना? Yes. So let's say they're going to resonate at the same frequency F1, ठीक है। अच्छा ये वाला कार्बन, is this different from all the other ones or is it the same as इसकी जो environment है? फिर डिफरेंट है। क्योंकि एक ही कार्बन है जो Cl के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। तो let's say it resonates at frequency F2, ठीक है। अच्छा what about this carbon atom? Is it different or same as some of the other ones? F1 वाली के साथ सेम है। नहीं ये तो बेंजीन वाला है। F1 वाला तो CH3 के साथ है, उससे तो डिफरेंट है। नहीं नीचे वाला मतलब जो तो बिल्कुल नीचे है, जो नीचे Cl वाला वाले है। कार्बन के बराबर में है। हाँ वो दोनों सेम है। इसका मतलब है ये दोनों लेट्स से फ्रीक्वेंसी F3 के ऊपर ना रेजोनेट करेंगे, और इसी तरह वो आगे चले जाओ तो ये दोनों भी सेम है ना, F4 और ये भी F4 पे रेजोनेट कर रहा होगा, और फिर वो आखिरी रह जाता है वो साउंड से डिफरेंट होगा, तो लेट्स से वो F5 है, ठीक है। तो कितनी पीक्स होगी? 5 होगी, ठीक है। और इस पे ये क्वेश्चन आएगा बेसिक्स 5 और फिर उससे प्रोटॉन एनएमआर का क्या है, तो उसकी ये दोनों सेम प्रोटॉन है, तो लेकिन कार्बन 13 क्लियर है कि कार्बन 13 के ऊपर ना इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि लेट्स से दे गिव यू, और वो कहते हैं इसका कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रम, वो ज्यादा से ज्यादा बस ये पूछेंगे कि हाउ मेनी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स डू यू हैव, तो इसके अंदर दिस कार्बन इज डिफरेंट, दिस वन इज डिफरेंट, दिस वन इज आल्सो डिफरेंट, तो 3 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी और तीनों की हाइट एक जितनी होगी, क्योंकि एक इस पे कर रहा है रेजोनेट, एक इस पे, एक उस पे, सारों पे एक कर रहा है, ठीक है। तो कार्बन 13 पे बस इस तरह का बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। बाकी वो छोटी मोटी बातें याद रखना कि वो नोट्स में लिखी हुई है। तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इसके बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, मेक श्योर यू मार्किंग स्कीम वगैरह से, ठीक है। और रिमेंबर इसका वो पजल की तरह सॉल्व करना है। अच्छा m, ये जिसमें से वो ग्राफ दिया हुआ है, m+2 का रेशियो एग्जैक्टली सेम आएगा तो क्या होगा? कौन सा एटम प्रेजेंट है? ब्रोमीन ब्रोमीन है, ठीक है। तो मतलब देख के पता लग रहा है इट्स ब्रोमीन। वो फिर mm+1 का दिया हुआ है। ज्यादा क्वेश्चन वही है, बस वो एनएमआर स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन। सर आपने क्रोमेटोग्राफी और वो भी करवानी है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस? हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ना वो हम गो थ्रू कर लेते हैं, अभी आसान ही है। जस्ट वन सेकेंड, मैं क्विकली गो थ्रू कर लेता हूँ, ये मैं भेज दूंगा इसके एंड पे, इलेक्ट्रोफोरेसिस के ना नोट्स लिखे हुए हैं, बस ये ना
कोड हैंग कर अच्छा इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले कर लेते हैं, वो क्रोमैटोग्राफी तो अगली क्लास में कर लेते हैं, ये खत्म कर लें। ये वैसे मैंने एक अलग से भी लेक्चर सेंड किया था इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अच्छा इलेक्ट्रोफोरेसिस ये कि फर्स्ट थिंग यू हैव एन अमीनो एसिड, ठीक है, सारों को स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज एन अमीनो एसिड। इट्स अ कार्बन एटम, एक साइड पे देयर इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एक साइड पे देयर इज NH2 और बीच में देयर इज एन R ग्रुप, ठीक है। सो यू गॉट लॉट्स ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स। पहले डेटा बुकलेट में ये R ग्रुप्स गिवन होते थे, ऑल अमीनो एसिड्स आर काइंड ऑफ द सेम, दे हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, R ग्रुप डिफरेंट होता है, ठीक है। ये क्लियर है, अमीनो एसिड क्लियर है? जी सर। अच्छा फिर ये कि amino acids can form zwitterions. It's an ion that has no overall charge, but it has regions of both negative and positive charges. What happens is कि आपका जो amine होता है ना वो basic होता है, और आपका जो carboxylic acid होता है ना that is acidic. Sorry, चला गया एक सेकंड। अच्छा आपका जो carboxylic acid होता है that is acidic. So what happens is कि आपका जो carboxylic acid it loses the H+1 and the amine which is basic it gains an H+1. So the end result is a zwitterine. कि अपना H+1 lose कर जाता है, उसका जो lone pair है ना that ends up gaining an H+1 and it forms this ion is a zwitterine. It's got negative and positive charges but it doesn't have an overall charge, ठीक है। zwitterine clear है? जी सर। अच्छा अब ये कि अमीनो एसिड जो है ना it behaves as an acid in basic solution, क्योंकि ऑब्वियसली अगर अमीनो एसिड को डालोगे ना अल्कलाइन सॉल्यूशन में तो OH आयंस जो है ना वो H+1 को अट्रैक्ट कर लेंगे and the acid would behave as the acid. अगर अमीनो एसिड को ना एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे ना it would start behaving as a base. अमीनो एसिड आर एम्फोटेरिक, ठीक है, they behave as अगर H+1 आप ज्यादा कर दोगे ना you'll make the solution acidic, तो वो जो लोन पेयर है ना वो H+1 एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो NH3+1. तो it's not always a zwitterine, sometimes it's a negative ion, sometimes it's a positive ion, sometimes it's a zwitterine, ठीक है, ये भी क्लियर है? जी सर। अच्छा अब ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है ना मतलब zwitterine कब बनता है? Alkaline conditions में it would form a negative ion, basic conditions में it would form a acidic conditions में it would form a positive ion. मिडिल में होगा ना अगर एक सोल्यूशन ऐसा है जिसमें H+1 भी है और OH आयंस भी हैं, फिर वो दोनों काम करेगा, ठीक है, कि अगर H+1 भी है और OH आयंस भी हैं तो फिर वो इट विल फॉर्म अ zwitterine. ये बात भी क्लियर है? सही है। तो कब H+1 और OH आयंस दोनों होते हैं, वो किस टाइप का सोल्यूशन होता है जब दोनों होते हैं? न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। pH7 का होता है H+1 और OH आयंस बराबर होते हैं। अच्छा तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वही पॉइंट है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है कि जहां पे OH आयंस और H+1 दोनों होंगे। OH आयंस होंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H+1 लूज कर जाएगा, H+1 होंगे तो एमाइन जो है वो H+1 गेन कर जाएगा, सो इट वुड फॉर्म अ zwitterine. तो zwitterines are formed somewhere around pH7, not exactly at pH7, ठीक है। उसकी रीजन ये कि हो सकता है एमाइन जो है ना वो बहुत वीक बेस है, अगर मैंने इसको zwitterine बनाना है ना, हो सकता है क्योंकि दोनों की जो स्ट्रेंथ है ना वो डिफरेंट हो सकती है। मे बी द कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ रियली स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, सो मे बी दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इफ इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड तो आपको इतने ज्यादा OH आयंस नहीं चाहिए होंगे, वो वैसे ही H+1 लूज करेगा, ठीक है। And maybe the base is a very weak base and the base is not willing to gain H+1. It's a very weak base. तो आपको क्या करना पड़ेगा, H+1 थोड़े ज्यादा डालना पड़ेगा, ठीक है। तो the zwitterine would be formed in a somewhat slightly acidic solution, क्योंकि अगर तो बेस वीक है ना वो H+1 गेन ही नहीं करना चाहती, तो आपको H+1 थोड़े से ज्यादा डालने पड़ेंगे कंपेयर टू OH आयंस। इज दैट पॉइंट क्लियर? सर फिर से रिपीट कर देंगे? नहीं मैं खाली ये कह रहा था कि वो बात क्लियर थी कि neutral conditions में the carboxylic acid would lose H+1 and the basic side would gain H+1. ये clear है ना? जी। लेकिन मैं ये कह रहा था कि it won't be a perfectly neutral solution, कि OH आयंस और H+1 बराबर नहीं होंगे उनमें से कोई एक स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि मसला ये कि ये जो एसिड पार्ट है और ये जो बेसिक पार्ट है ना इनकी स्ट्रेंथ वेरी कर रही है, ठीक है। तो अगर मैंने उसको zwitterine बनाना है which is the pH at which it forms, isoelectric point is the pH at which zwitterines are formed.
तो वो ज्विटराइन जो होगा वो pH7 के ऊपर जाके फॉर्म नहीं होगा। अगर तो ये बेस जो है ना दैट्स वेरी वीक, वो H+ गेन करना ही नहीं चाहती, तो मुझे H+ थोड़े से ज्यादा करने पड़ेंगे ताकि वो H+ गेन कर ले। तो मुझे सोल्यूशन को थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक बनाना पड़ेगा। तो बात समझ आइए? ये बात क्लियर है? रुपया हादिया सियालिस्ट है। Yes, sir. मैं इधर शो भी कर दूं कि अच्छा मैंने करना क्या था कि इसको बनाना था ज्विटराइन, राइट? याद करो पे द कार्बोक्सिलिक एसिड को, अब लेट्स से दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, द एसिड आयनाइजेस अप्रॉक्सिमेटली द सेम वे एज द बेस, तो मुझे OH आयंस डालने पड़ेंगे ताकि वो H+ लूज करे, और यहाँ पे मुझे H+ ऐड करना पड़ेगा ताकि NH2, it has to be kept a neutral solution. So the zwitterine would be formed at a perfect pH7 where the H+1 and OH ion concentration would be exactly the same. But जो मैंने explain किया था वो ये था कि what if the base is a very weak base? So if it's a very weak base, तो वो आयन बनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मुझे अपनी तरफ से ना H+ थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे ताकि वो H+ गेन कर ले, ताकि वो zwitterine बन जाए। तो फिर pH जो होगा ना वो slightly, it won't be 7, maybe it's pH6, slightly acidic करना पड़ेगा, थोड़े से H+ ज्यादा करने पड़ेंगे। So is this point clear? जी सर। जी सर। Yes. So the isoelectric point is pH7, but it's not exactly pH7. It's either slightly off, या तो slightly it will be off to the acidic side, or it will be slightly shifted to the basic side, depending on कि ये दोनों जो acid और base इनकी strength क्या है, which is not exactly. Sir? हाँ जी। सर अगर हम H+ और OH एक साथ डालेंगे तो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएंगे? नहीं, H+ और OH ज्यादातर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा आयंस रहेंगे ना। pH7 के ऊपर आयंस काफी कम होते हैं ना, हम तो वो बैलेंस की बात कर रहे हैं ना। जब pH7 होता है उसका क्या मतलब है, H+ की कंसंट्रेशन इज 1 × 10⁻⁷ और OH आयन की भी कंसंट्रेशन अप्रॉक्सिमेटली सेम होती है। ठीक है, क्लियर? जी सर। अच्छा, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्लियर है। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का करना ये, थिंक ऑफ द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एज pH7। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से अगर नीचे कोई pH होगा ना उसको आपने एसिडिक ट्रीट करना है, अगर उससे ऊपर कोई pH होगा ना लेकिन pH7 नहीं यूज करना, ठीक है? you'll use the isoelectric point. तो फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है ना pH6 है, और वो आपसे क्वेश्चन में पूछने के इसका भी ड्रॉ ग्लाइसिन एट pH6.5। अब ग्लाइसिन के लिए जो न्यूट्रल पॉइंट है ना वो pH6 है, मतलब ग्लाइसिन के पर्सपेक्टिव से। तो अगर तो pH6.5 है, it's higher than the isoelectric point, so from the perspective of glycine this is basic conditions. क्लियर? और बेसिक में वो किस फॉर्म में होगा? मतलब बेसिक कंडीशन में उसका जो एसिड वाला पार्ट है ना that would lose H+1. Is that clear? जी जी सर। और अगर मैं कहता हूँ कि pH 5.5 पे ग्लाइसिन को ड्रॉ करो, तो pH6 पे वो NH2। हाँ, तो 5.5 उसके लिए एसिडिक होगा because it's lower than the isoelectric point, so for glycine this is considered acidic। ठीक है? तो इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये है, तो pH 8 पे क्या होगा या pH 9 पे क्या होगा? तो आपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को ना बीच में रखना है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे उसके पर्सपेक्टिव से, अमाइनो एसिड के पर्सपेक्टिव से उसको लग रहा है कि pH 7। ठीक है? और ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोफोरेसिस है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज लाइक क्रोमैटोग्राफी, उसमें आप सेपरेशन करते हो, ठीक है, ऑफ अमाइनो एसिड्स। एक फिल्टर पेपर होता है सोक्ड इन बफर सॉल्यूशन, ठीक है? तो बफर सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि रिमेंबर पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। इफ यू चेंज द पीएच, द अमाइनो एसिड की जो शक्ल है ना वो चेंज हो जाती है। मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे इट्स समथिंग एल्स, slightly acidic में it looks something else, basic में so you need a buffer solution because you want to resist a change in pH, because if the pH changes the amino acid would also change. अच्छा, लेकिन अब इस पे आ जाते हैं कि you'll put a mixture of amino acids over here. अब different amino acids will have different charges. Some would form a zwitterine, some would form
a negative ion, some would form a positive ion, depending on what the pH of the buffer solution is, depending on what their isoelectric point is. ठीक है, ये बात क्लियर है कि कोई अमीनो एसिड पॉजिटिव बना होगा, कोई नेगेटिव बना होगा, कोई zwitter ion बना होगा. ठीक है, is that clear? जी सर. और आप दोनों साइड्स पे ना बैटरी से जैसे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करते हैं, उसमें भी यही करते हो. तो एक आपका पॉजिटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है. मतलब दिस इज योर एनोड, दिस इज योर कैथोड. तो अगर तो आयन जो है ना वो नेगेटिव आयन बना हुआ है, तो वो नेगेटिव आयन जो होगा ना पॉजिटिव वाली साइड पे इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड. और अगर वो पॉजिटिव आयन बना हुआ है तो इट विल स्टार्ट मूविंग टू द नेगेटिव साइड. एंड इफ इट्स अ zwitter ion तो वो बीच में ही स्टक होगा. इट विल स्टे राइट, क्योंकि zwitter ion ओवरऑल इज न्यूट्रल. ये भी क्लियर है? सही है सर. तो बस आपसे ना क्वेश्चन पूछ लेगा, वो कहेगा कि दो अमीनो एसिड है, एक ए और एक बी है, कौन सा वाला नेगेटिव आयन है? तो जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है दैट्स द नेगेटिव आयन, जो नेगेटिव साइड पे अट्रैक्ट हो रहा है दैट्स द पॉजिटिव आयन. और मूवमेंट ऑफ द अमीनो एसिड सेपरेशन क्यों होती है? सेपरेशन हैपेंस बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. वन इज द चार्ज ऑफ द अमीनो एसिड, the zwitter ion stays in the middle, positive ion move towards the negative ion moves towards the positive. तो मूवमेंट दूसरा डिपेंड करती है एमआर पे, द साइज ऑफ द अमीनो एसिड. अगर तो एमआर छोटी होगी ना, द एमआर इज लेस. इफ इट्स अ लाइट अमीनो एसिड देन इट विल ट्रैवल फर्दर एंड वाइस वर्सा. इफ इट्स अ हेवी अमीनो एसिड देन इट विल ट्रैवल लेसर. ठीक है, बस ये टोटल वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस और zwitter ions. ठीक है, ये क्लियर है? जी सर. और इसका बस बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, एक सेकंड. हाँ जी, बाजू इट्स रिवाइजिंग. ठीक है, अच्छा इसके इलेक्ट्रोफोरेसिस के एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं कि अगर मिल जाए. अच्छा, फर्स्ट थिंग उससे क्या, draw a diagram to show the apparatus used to carry to electrophoresis. You should label each of the relevant parts. तो बस यही है जो बना हुआ है. I mean that's it. कि filter paper soaked. This is the filter paper soaked in buffer solution. This is the battery. That's it. Amino acid mixture यहाँ पे है. And that's it. इसका वो देख लेते हैं कि is this a specimen paper? One second. 4213. One second. इसका वो देख लेते हैं कि कितने मार्क्स है. 4 marks. वो देख लेते हैं इसका आंसर. 4213. 1 second. 701. W13. I think 42. 4213. अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन है? दिस इज 7. This one. अच्छा, so well, it's exactly the same. Amino acid mixture placed over here. Glass slides label कर देना कि I mean the filter paper is supported, soaked in buffer solution. You've got an electrolyte या buffer solution उसको लिखना है. ठीक है, तो बस वही है, almost the same thing. Glass slides बस missing. I'll just add कि एक label कर दो कि glass slides. उसको वैसे उससे मार्क तो नहीं दिया कोई. एक सेकेंड. हाँ, मैं ग्लास लाइट का कोई मार्क नहीं था, वो तो वैसे ही था. चलो ठीक है, ये. और फिर दूसरा, how far an amino acid will travel during electrophoresis depends on the pH of the solution. For a given potential difference state, two other factors that will affect how far a given amino acid travels in a fixed time during. तो how far will depend on the pH. ठीक है, so it depends on the charge, how far it travels. So first one is going to be, just better type because one would be charge, the other one would be the size of the amino acid. जो यहाँ पे मास लिख सकते हैं साइज की जगह. साइज mr लिखा हुआ है. ठीक है, तो mr ज्यादा बेहतर होगा. अच्छा, चार्ज वैसे टेम्परेचर भी दिया हुआ है एक. टेम्परेचर होगा तो obviously they would travel, they'll be more energetic, kinetic energy ज्यादा होगी, so they will travel further.
लेकिन टेम्परेचर वैसे कोर्स में नहीं है। अच्छा एक में बस वो ये तो पार्टीशन कोएफिशिएंट आ गया, एक में देखना चाह रहा हूँ उसमें वो आइडेंटिफाई करने को कहेगा कि लेटेस्ट अच्छा इधर वही डायग्राम उसने पेपर में बना दिया है। वो क्या some amino acids may not move, so why would they not move? Because there's water ions. ठीक है, state the power supply. अच्छा, the amino acid glycine has the formula this. Identify the species formed in the filter paper if glycine moves to the left. If it moves to the left, so it must be a negative ion, right? मतलब वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, it must be a negative ion. So that means ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो H है ना, that would be gone. और फिर following results to obtain, तो वो कह रहे हैं relative size. Which one is the lightest? यहाँ पे प्लेस किए थे अमीनो एसिड. Which one is the lightest? A. ठीक है, A is the lightest and B is the heaviest. ठीक है, which ones are negative ions? A, B. A and B. ठीक है, C जो तो बस इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बेसिक. ठीक है, अगर वो बीच में होता तो it would be neutral. ठीक है, तो कोई ज्यादा खास क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आएंगे. बस वो रह गया फिर ये इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हो गया. The only thing left is वो फिर हम बाद में करते हैं. Chromatography. वो भी बेसिक है, वो बहुत बेसिक है. उसका मैं वैसे देख लूं कि क्या क्या निकाल दिया एक्चुअली. Just 1 second. अच्छा, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, मैंने बेसिक किया है. थिन लेयर है और कौन सी है, एक सेकंड. तो ये फिर अगली एक छोटी सी क्लास करेंगे, उसमें हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा. ठीक है, सर हम कल ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं. ठीक है, वो अगली क्लास में फिर हम ऑर्गेनिक के पास वापस करेंगे और फिर ये भी कवर कर लेंगे. ये छोटा सा ठीक है. ये आरएफ वैल्यू वही है वैसे, इसमें कोई खास फर्क नहीं है. वही वो जो ओ लेवल्स में था ना आरएफ वैल्यू, ये वही है, सही है. उतना ही बेसिक है. ठीक है, तो ये फिर अगली क्लास में इसको गो थ्रू कर लेंगे. ये भी ऑलमोस्ट वही है. पेपर क्रोमेटोग्राफी उन्होंने निकाल दी वो. हाँ, पेपर ये वैसे कोई सर्च कर ले, पेपर क्रोमेटोग्राफी पहले होता था, वो अब नहीं है. वो तो बिल्कुल ही वो लेवल्स वाला था. तो चलिए फिर करते हैं क्लास. ठीक है, कल होपफुली कर लेते हैं. ठीक है, ओके सर, थैंक यू. लव यू. ऑफिसर Love is हाफिज.